Hi guys, welcome back. Yeah, I know it's quite late while I'll be uploading this video. I think it'll be 1:30. Right now it's still 12:44 a.m. So yeah, hopefully I'll be able to upload this video quite as soon as possible. थोड़ा सा delay हो गया ये result update बनाने में because like I've been moving houses and everything and I'm just super exhausted. But yeah, like we just still need to show up and make a video. And today we're going to be discussing about Q4 updates of there are actually like four companies that I want to talk about. PNGS Gargi, Som Distilleries and Breweries Limited. एक और कंपनी है बोल के NK Wheels which is a turnaround story हो रहा है उस कंपनी में. एंड दूसरा एक कंपनी है विच इज़ सेलोकॉर गैजेट्स. ठीक है, चार कंपनी है टोटल. आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर ऑल फोर कंपनीज इन वन वीडियो. आई विल सी एज मच एज आई कैन कवर लाइक दो एक वीडियो में, वरना तो आई मेक सेपरेट वीडियोस, सॉरी सेपरेट वीडियोस फॉर ईच कंपनीज. ठीक है, सो आज हम पहले बात करने वाले PNGS गर्गी फैशन ज्वेलरी के बारे में. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो लाइक PNGS गर्गी मेनली बनाते हैं फैशन ज्वेलरी. फैशन ज्वेलरी का मतलब है आपका वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होता है विच इज़ मेड अप ऑफ आपका bronze and silver, right? And recently in when they came out with IPO, they told that they will introduce this 14 karat and 14 karat ka diamonds, right? That is what, and the product mix was changing. So this was the major event or the change that was happening in the company which was propelling the growth, right? And they also had this very ambitious target of achieving unka FY23 ka revenue tha 28 crore, and in the next 2 years in FY25, by FY25 they wanted to achieve 100 crores in top line, like the total top line, right? So if you want to like dive deep into like the business model, just go into PNGS गर्गी का एक वीडियो है YouTube में, business analysis playlist में रहेगा. You can just go there, it is completely covered. Now we'll just go deep and check in as how has been the Q4 FY24 का numbers. Okay, पहला बात, I believe the results were good, the results were fantastic because in terms of अगर आप top line का growth देखोगे ना, revenue on a QOQ basis, मतलब last March का quarter versus इस March का quarter, the revenue has grown by 79%. और PAT का भी देखो, PAT भी has grown 73% on year. Now I wouldn't, of course there is no operating leverage here, but ये भी समझो कि like ये कंपनी ग्रोथ फेज में है, like इतना शॉप्स खोल रहा है और डायमंड लाइक इन्वेंटरीज लाइक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ विच दे नीड अ लॉट ऑफ मनी इन इन्वेंटरी एंड एवरीथिंग. इसकी वजह से यू आर नॉट सीइंग दैट ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, और दूसरी बात अगर आप बोलती हो सेकंड कंपोनेंट इन दैट रिजल्ट इज दी QOQ चेंजेस. राइट, QOQ में यू विल सी दैट द इट इज डाउन, बट वन थिंग टू नोट हियर इज ये ज्वेलरी सेगमेंट है और ज्वेलरी सेगमेंट में और कोई भी B2C आप देखो वहाँ पे एक सीजनैलिटी का एस्पेक्ट होता है बिकॉज Q3 इतना बम्पर होता है बिकॉज ऑफ ऑल द फेस्टिविटीज एंड वेडिंग सीजन एंड एवरीथिंग. सो Q4 in respect to Q3 looks a bit lull. Okay, but that doesn't mean business में कुछ प्रॉब्लम है. और लास्ट है कि आप पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपेयर कर रहे हो, मतलब FY23 का FY24 से, मतलब ऑल फोर क्वार्टर्स लाइक ना मार्च से मार्च लाइक आप कंपेयर कर रहे हो. इन दैट यू विल सी आई थिंक द रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय अराउंड 40% ऑन अ ईयर बेसिस. नाउ हियर लाइक FY23 में उनको टोटल ईयर का रेवेन्यू था 28 करोर्स और FY24 में दिस साल में तो टोटल रेवेन्यू इज 50 करोर्स. नाउ दे वांट टू अचीव 100 करोर्स in revenue, right, by next year. So a lot of people like thought it would be more, it would be in the range of 60 to 70. That was the estimate and it missed the estimate, right? But here is the thing, I've also told this in that video जो मैंने गर्गी के बारे में पहले बनाया था जब IPO के टाइम आ जाता. गर्गी डजंट हैव अ USP ऑन इट्स ओन इफ इट इज जस्ट केटरिंग ऑन टू फैशन ज्वेलरी. ठीक है, बिकॉज फैशन ज्वेलरी में आप वो जो इट इज़ अ वेरी लो टिकट आइटम फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम प्राइस था उनका लाइक एवरेज प्राइस था उनका प्रोडक्ट्स था वाज अराउंड 400 to 600, राइट? सो देयर एट दैट टाइम what happens is like आपका like and there is so much competition, low margin product है, there is nothing like a USP you have over there. The major change happened here because product mix आ रहा था. I kept telling, उसमें चिल्ला के बोली थी मैंने like भाई हीरा लाए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट? एंड आई नो लॉट ऑफ यू पीपल वर कमिंग टू माई DMs एंड मेरा खिल्ली उड़ा रहे थे like आप क्या सूरत का डायमंड ट्रेडर हो क्या? बट एनीवेज like they needed that हीरा, they needed that diamond, right? Because it is gold at the end of the day, it is 14 karat to change it here. एंड दैट इज वॉट इज हैपन. बट वो डायमंड कब इंट्रोड्यूस हुआ? वो डायमंड उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस हुआ आई थिंक आफ्टर Q2 का रिजल्ट, लाइक आफ्टर Q2 इन बिटवीन समवेयर बिटवीन Q2 का Q3 में, दैट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एंड सो टेक्निकली इफ यू सी दे गॉट रियली वन गुड क्वार्टर विद दैट डायमंड का ज्वेलरी, राइट? बिकॉज Q3 इज अ बम्पर क्वार्टर लाइक आई टोल्ड यू. Q4 इज अगेन अ बिट लाल कंपेयर टू Q3, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इस साल इस क्वार्टर में उन्होंने 79% का ग्रोथ किया. सो इन रिस्पेक्ट, सो इफ दैट डायमंड ज्वेलरी वॉज प्रॉबली इंट्रोड्यूस्ड like before,
like let's say in the start of the financial year, then I would say with respect to that 50 crore in पूरा साल का is a bit of lull. But जब diamond jewelry introduce हुआ H2 में, तो आप you know I would say 50 crore is decent. And अभी anyways product mix तो change हो रहा है, right? Because earlier it used to be 100% वो fashion jewelry. Now उन्होंने diamond jewelry introduce किया, and by FY25 they want to reach a mix where 50% is this diamond jewelry and 50% is fashion jewelry. So as soon as we move further into quarters, वो product mix तो like the diamond का share जो है 14 carat diamond का share उस product mix पे it will keep having higher share ना, and then you will see it. So I would say I think at least another benefit of doubt should be given for Gargi on another quarter, right? And others अगर आप देखते हो कि like PAT margins जो है PAT margins has come down from 18% to 15%. इसका भी एक और रीज़न है, कंपनी ने ऑलरेडी बोला था कि लाइक अगर हम डायमंड ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पैट मार्जिन होगा 13 to 15%, क्योंकि दो रीज़न है, ठीक है? क्योंकि पहला वाला इस डायमंड को खरीदने में और आपको फ्रेंचाइज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो ज़्यादा पैसा लगता है. You have to keep a lot of working capital, because when you are buying diamond you are paying it like आपका you have to pay cash first hand, right? And then you will get cash when you sell it. So बीच में आपकी inventory है when you have to buy before buying the diamond and selling it to the franchise and everything, right? So because of this inventory बढ़ता है. And second कि like to fund this working capital what they did was उनका जो कैश था बैंक में और बैंक बैलेंस में जो कैश था they liquidated completely and used it in working capital. Because of this, because they liquidated the cash in their bank, right? अब तो उसमें जो इंटरेस्ट आता था, पहले तो बैंक में एफडी करके रखा था तो उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आता था ना, सो दैट ऑल्सो यूज्ड टू ऐड फॉर फाइनेंस कॉस्ट, एंड आपका तो पैट मार्जिन थोड़ा बढ़ रहा था. अभी यू हैव लिक्विडेटेड ऑल द मनी एंड यूज्ड इट इन इन्वेंटरी, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो उससे मिलता था, आपको जो इंटरेस्ट मिलता था उस पैसे में वो नहीं है. इसके वजह से दोनों के वजह से पैट मार्जिन थोड़ा कम बढ़ गया है. एंड द अदर रीजन इज दे ऑल्सो मूव्ड इनटू फ्रॉम कोको टू फोको स्टोर्स, राइट? कंपनी ऑपरेटेड से वो लोग फोको में चले गए, जिसके वजह से they opened 10 stores in H2 itself. They were supposed to open 10 stores in throughout the year, even that they did. So overall is all of this, if you see, because of all of these reasons I believe Gargi का result has been good. Now अगर हम deep dive करते हैं उनका बैलेंस शीट में और उनका जो क्या बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप उनका ALM देखते हो, एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं है. करंट रेशियो जो है इज एट अ सॉलिड 4, लाइक लिक्विडिटी रेशियो हम जो बोलते हैं एब्सोल्युटली 4, लाइक फैंटास्टिक, राइट? 4 इज अ ग्रेट नंबर. क्विक रेशियो जो है इट इज अराउंड 0.5. ना वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अगर आप देखते हो, क्योंकि सारा पैसा वहाँ पे इन्वेंटरी पे अटका है, सो इट इज़ नॉट लाइक यूजुअली पीपल थिंक लाइक अरे क्विक रेशियो अगर 1 से नीचे है तो वो बोलते हैं कि लाइक अरे ये तो बुरा कंपनी है. बट पहले पूछो तो क्विक रेशियो क्यों 1 से कम है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने में इन्वेंटरी में पैसा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे अटका हुआ है ना. सो दैट इज़ वाई इट इज़. अदर देन दैट इवन कैश फ्लो में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पैसा है वो इन्वेंटरी में है, एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, सो नथिंग टू कंप्लेन. आई ओनली वॉन्ट टू सी कि लाइक मैनेजमेंट क्या बोल रहे हो कॉन कॉल में, बिकॉज आफ्टर द IPO they did only one con call. After that I think the next 2 quarters they didn't do con call at all. So we'll have to see कि like con call करता है कि नहीं. But at this rate I would say कि like if they continue or at least increase the pace of their growth, their sales growth a little bit even more, which I think will be possible if they are getting aggressive with the diamond jewelry. I do not see why that 100 crore achieving that 100 crore by FY25 is not possible or not. और एक लास्ट की चीज़ें एक वैल्यूएशन का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? नाउ गर्गी ने बोला राइट 100 करोड़ हम करेंगे FY25 में, लाइक बाय नेक्स्ट ईयर वी विल डू 100 करोड़, ठीक है? एंड बोला है कि लाइक पैट मार्जिन जो है इट विल बी अराउंड 12 to 15%, ठीक है? नाउ आपका प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट? प्रॉफिट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल. आपका प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बोला इट विल बी अराउंड 12 to 15%, ठीक है? 12 to 15% का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 100, 0.12, 0.15, और यहाँ पे आपको मालूम है सेल्स होगा 100 करोड़. सो यू विल गेट द नेट प्रॉफिट, एटलीस्ट रफली आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सो द नेट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, if you assume it is a 12% PAT margin, on the lower end it will be 12 crore. If you assume it is around 15% का PAT margin, it will be 15 crores, right? So 12 to 15 crores के बीच में उनका नेट प्रॉफिट रहेगा. और गर्गी का मार्केट कैप आई थिंक अराउंड 577 करोड़ है प्रॉबेबली. हाँ, गर्गे का मार्केट कैप इज 577 करोड़. सो आपको P इज मार्केट कैप डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट अगर आप ये करते हो, सॉरी या
you will get it around आपका P का range comes between 38 to 44. So 1 year forward P comes in the range of 38 to 44. Now it's up to you to decide whether it is undervalued or overvalued. मेरा काम है आपको like management क्या बोला है और result कैसा है वो बताने का, और आप लोग valuation बोलते हो, इसलिए मैंने आपके ये valuation का exercise भी करके आपको दिया है. So it's up to you to decide right now if this 38 to 44 is expensive or not, because yeah, I believe valuation आप जो बात करते हो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. एक ही बिजनेस का अगर मैं वैल्यूएशन का बात करूँ, फॉर समवन दे कैन सी दे कैन डिस्काउंट इट एंड फाइंड द करंट बिजनेस टू बी अंडर वैल्यूड बाय लुकिंग एट द फ्यूचर prospect. For somebody else the same business can be overvalued, right? So I do not want to like also like discuss more on that. And the other thing is like अगर आप valuations का बात करते हो, I think indirectly it also goes down to like giving a buyer like it can come across as a buy or sell recommendation, which I do not want to do. Like my main objective with me doing videos, with me posting, is like to help you guys and understand how to read con calls, how to like like decipher the result. That is my main objective, so that you people also can do the same, right? अगर आपका कोई भी होल्डिंग हो, आप एक कॉन कॉल पढ़ के उसको लाइक समझ के कि आपका खुद का डिसीजन ले लो. दैट इज माई एंटायर द एंटायर मोटिव ऑफ डूइंग दिस वीडियोज. सो आपको एक 50% का ग्रोथ इंजन एटलीस्ट मिल रहा है 38 to 40 के पी के रीच में, एंड इट्स अप टू यू टू इन्फेयर के लाइक वो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है. सो दैट इज इट. लाइक आई टोल्ड यू, लाइक इफ गर्गी continues to do what it does, I do not see again why 100 crore is not achievable at this rate. I would say, like I told you, because that diamond jewelry जो है was introduced in H2, I think for the product mix to change significantly, for it to be 50% will take a bit longer, and I think that is why you shouldn't judge like on a FY23 versus FY24 revenue basis and be like, oh, it could have been better or something. So anyways, that's that on Gargi, PNGS Gargi fashion jewelry. I would want to cover some distilleries in this video, but already video अभी 11 मिनट का हो गया है, so if I don't think I'll be able to upload it if it exceeds this. So anyways, that's that about PNGS करके. मैं सोम डिस्टिलरीज के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, और प्रॉब्ली NK व्हील्स और जो सेलोकार गैजेट्स है उसके बारे में एक और वीडियो में बता दूंगी, ठीक है? एंड या दैट्स दैट, एंड सी यू गाइस लेटर. बाय.